Hello everyone. This question was one of the toughest questions of CAT 2023 बट ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन था और वन कैच में लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है बट व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल फेस द डिफिकल्टी सो आई टेल यू कि ट्रैप कहाँ था और उस ट्रैप से कैसे बचना था। तो शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2020। So we have 2020 and the population in 2020 was given to you 1 lakh. No problem with that. The population decreased by y percent. Okay, in the year 2021. So this is decreased by y percent. So in the year 2021. So if you know the final value after increase or decrease, for example, we have initial value 100 and I want to have 10% increase. So what would be the final value? So you must know this is going to be initial value multiplied by 1 plus percentage change divided by 100. If it is going to be decreased by 20%, so my final value should be initial value. So this is decrease. So I will put minus sign. Percentage value is 20 divided by 100. You must know this concept. So if it is decreased by y percent, so population should be initial value multiplied by 1 minus y upon 100. Y minus because this is decreased. No problem. Now in the year 2022, the population is increased by x percent. The population is increased by x percent. Means the final population in the 2022 should be the previous population was 1 lakh into 1 minus y upon 100. So 1 lakh into 1 minus y upon 100 into this is a successive change. So multiplied by 1 plus percentage change is x upon 100. Now it is given in the question 2022, right? So it is given in the question that if the population in the year 2022 was greater than the population in the year 2020, means this population, this is the final population in the year 2022 and it was greater than the population in the year 2020. So what was the population in the year 2020? It was 1 lakh. So I'll be putting 1 lakh here. Hopefully it is clear to everyone, right? यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम जरा सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना और ये भी दे रखा है एक्स वाई जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा है। और ये भी बात इन्होंने बोल रखा है कि जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई का, जो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो लॉजिकली एक बात सोचने वाली है कि यदि फाइनल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो एक्स की वैल्यू टेक्निकली ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 10% डिक्रीज है तो इंक्रीज करने के लिए कम से कम 11% या 10 से ज्यादा करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 11 करना पड़ेगा बेयर मिनिमम, तभी जाके जो नेट वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो आई कैन से एक्स इज ग्रेटर देन वाई और ये डिफरेंस आपको दे रखा है 10, डिफरेंस दे रखा है इसमें 10 का डिफरेंस। सो आई कैन से एक्स minus y equals to 10, so x equals to 10 plus y. So this was one of the catch। ठीक है, ये एक कैच था यहाँ पर। ठीक है, चलो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई कैन कैंसिल आउट बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट और यू आर नॉट श्योर कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये तभी कैंसिल होता है या तभी माइनस, मतलब तब आप इधर वैल्यू को ले जा सकते हैं इनइक्वालिटी के इधर, जब ये इस बात की गारंटी हो कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस, नॉट प्लस एक्चुअली माइनस, माइनस वाई अपॉन 100 1 plus x, this is plus x upon 100 minus xy upon 10,000, right, is greater than 1, is greater than 1. So I can take or I can subtract 1 from both sides. So we are left with x upon 100 minus y upon 100 minus xy upon 10,000. This is going to be greater than 0. Why 0? Because both sides we have the same number and both are positive, so I can subtract 1 from both sides, right? So if I take the LCM is 10,000, so I can write 100x minus 100y minus xy is greater than 0. Denominator is of course it is positive, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो हमारे पास बचेगा 100x minus 100y minus xy greater than 0. होपफुली इट इज क्लियर। अब आपको x की वैल्यू को रिप्लेस करना है 10 प्लस y से।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 10 प्लस वाई, 100 इंटू 10 प्लस वाई माइनस 100y माइनस 10 प्लस वाई इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर आएगा 1000, इधर आएगा प्लस का 100y, इधर आएगा माइनस का 100y माइनस का 10y माइनस का वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। सो दीज टू cancel each other, so we are left with minus y square माइनस का 10y माइनस का 10y, right, and plus 1000 is greater than zero. If I multiply inequality by negative sign then the sign reverses. So अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, so हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 1000 लेस देन जीरो। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y इज लेस देन 1000। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज पढ़नी थी, लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन इन द ईयर 2021, 2021 में सबसे कम पॉपुलेशन कितनी होगी, सबसे कम पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि y शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, क्योंकि आपको ये जो डिफरेंस है ये बड़ा मेंटेन करना है, ठीक है, जो डिफरेंस है बड़ा मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को मेंटेन करे और y की सबसे ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं कंप्लीट स्क्वायर दोनों तरफ करने वाला हूँ। तो मेथड ऑफ स्क्वायर जो है कंप्लीट करने के लिए आपको जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो वैल्यू 10 है, उसका आधा करना है, तो 10 का हाफ आएगा 5 और 5 का स्क्वायर करना है, दैट इज 25, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा सो दैट आई कैन बैलेंस द इक्वेशन। सो अल्टीमेटली हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1025। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, सो दैट ये इनइक्वालिटी आपकी मेंटेन रहे। तो y की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि y प्लस 5 होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो y की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है वो 27 जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम 27 रखते हैं तो 27 प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 32 का होल स्क्वायर जो कि होता है 1024। क्या 1024 1025 से कम है? इसका मतलब जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 27 हो सकती है। तो अगर y की वैल्यू 27 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37, राइट, 37। इसका मतलब जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई है इन द ईयर 2020 टू 21, तो आई हैव टेकन y इक्वल्स टू 27, राइट। इसका मतलब जो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2021 में, सो 1000 को डिक्रीज करेंगे ना, 27% का डिक्रीज करेंगे, तो 1 माइनस 27 अपॉन 100, आफ्टर सोल्यूशन यू विल बी गेटिंग 73,000। क्योंकि भाई 1 लाख पर 27% कम करना है तो 27,000 कम हो जाएगा। तो 1 लाख का 27,000 मतलब 1 लाख का 27% 27,000, तो 1 लाख में से 27,000 पॉपुलेशन माइनस करेंगे तो 73,000 पॉपुलेशन, जो कि इस सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी अच्छे कंसेप्ट और सॉल्यूशंस के लिए आप क्वांटोलॉजी और जो मेरा दूसरा चैनल द सिलेक्शन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैथ्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सब कुछ वहाँ पर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन कीप स्टडिंग एंड गिव द फीडबैक टू माय वीडियो बाय लाइकिंग इट और कमेंटिंग इट, जो भी आपका सजेशन है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इफ यू रियली लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।